নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী দিল্লীৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ত আনন্দ মুখৰ পৰিবেশ মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীতক লৈ আনন্দ উল্লাস বিজেপি মুখ্য কাৰ্যালয়ত মহিলাৰ ভিৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত নাৰী শক্তি উদযাপন কাৰ্যসূচীত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লগতে উপস্থিত আছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডা আমি পনপটীয়াকৈ আপোনালোকক লৈ গৈছো বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ তাতে এনেদৰে এতিয়া বিজয় উৎসৱ পালন কৰা হৈছে অৱধাৰিতভাৱে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত নাৰী সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত হৈছে আৰু তাৰ পিছত এয়া আনন্দ উৎসৱ বিজয় উৎসৱ ये हम सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी है जो इतिहास में आगे चल करके दर्ज होगी और लंबे समय तक याद किया जाएगा ऐसे घड़ी का ऐसे क्षण का हम उसके चश्मदीद गवाह हो ये हम सबका सौभाग्य है ये ऐतिहासिक घड़ी ये भावनाओं से भरी हुई घड़ी ये भावुक कर देने वाली घड़ी जिसका हम सब लोगों को लंबे समय से इंतजार था वह संभव हो पाया तो दूरदृष्टि अटूट निश्चय और पक्के इरादे के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नारी शक्ति वंदन विधेयक को समय पर ला करके जो पारित कराया है इसके लिए भी हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं हम जानते हैं कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं अनेकों कदम उठाए हैं और यही नहीं देश के बहुत लंबे समय से लंबित समस्याओं का भी निराकरण आपने प्रजातांत्रिक तरीके से करने में आप हमेशा सक्षम रहे और आपने उसको भी पूरा किया है अगर हम याद करें तो जो हम 52, 53, 54 में धारा 370 की बात करते थे ये आपका अटूट निश्चय आपकी दूरदृष्टि और आपकी इच्छा शक्ति का परिणाम है कि धारा 370 समाप्त हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग के दृष्टि से स्थापित भी हुआ ये हम सब लोगों ने देखा अगर हम बात करें हमारे फौजी भाई 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे किसी ने राहत नहीं दी लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको भी हमको करके दिया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन ये कभी सोचा भी नहीं था उसको भी पूरा करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक से हमारी मुस्लिम बहनों को निजात दिलाने का काम जो लंबे समय से लंबित था किसी में भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस कार्य को कर सके हमारे विरोधी दल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते थे लेकिन आपने हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से निजात दिला करके उनको भी आपने आजाद किया ये हम सब लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में महिलाओं को पहले से ही अपना पूरा प्रतिनिधित्व देने के लिए कटिबद्ध रही है यह भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 33% आरक्षण केंद्र स्तर के समिति से लेकर के बूथ स्तर के समिति तक महिलाओं को आरक्षण देने में अकेली और पहली पार्टी है यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए आपने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए मैं 1-2 कार्यक्रम का जिक्र करूंगा আৰু ইয়াত দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছো নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ পাছতে বিজেপি মুখ্য কাৰ্যালয়ত নাৰী শক্তিয়ে আনন্দ উৎসৱ পালন কৰিছে আৰু এই বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জেপি নাড্ডাই ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ চৰম দায়িত্বহীনতা কলিয়াবৰত মুকলি আকাশৰ তলত ৰ'দে বৰষুণে পৰি ৰৈছে হাজাৰ হাজাৰ চাইকেল
কুঁৱৰীটোলৰ মুক্তি যুঁজাৰু স্মৃতি ভৱনৰ বাহিৰে ভিতৰে দম দমকৈ থোৱা হৈছে 2022-23 বৰ্ষৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আবণ্টিত এই চাইকেলসমূহ ৰ'দে বৰষুণে পৰি থকাৰ ফলত চাইকেলসমূহত মামৰে ধৰিবলৈ উপক্ৰম হৈছে চাইকেলসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত কেতিয়ালৈ বিতৰণ কৰা হ'ব তাৰ কোনো স্পষ্ট তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই আগবঢ়াম কলিয়াবৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দিবাকৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আঁচনিৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়া চাইকেল বিতৰণ কৰা হ'ব তাৰ বাবে দেখা গৈছে কলিয়াবৰ ইয়াত এনেদৰে দমে দমে চাইকেল ৰখা হৈছে আৰু যি কলিয়াবৰ গৰিতলৰ মুক্তি যুঁজাৰু ভৱনতে ৰখা হৈছে আৰু এই যিসমূহ চাইকেল বহিৰাজ্যৰ পৰা অনা হৈছে ইয়াত একাংশ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে চাইকেলসমূহ সংলগ্ন কৰি আছে আৰু ইয়াত সংলগ্ন হোৱাৰ পিছত এনেদৰে কিছু চাইকেল ভিতৰত আছে ভৱনটোৰ আৰু কিছু চাইকেল বাহিৰত ৰখা যাৰ ফলত এনেদৰে বৰষুণ ৰ'দৰ মাজতে চাইকেলসমূহ এনেদৰে পৰিছে হাবি জংঘল গজিছে চাইকেলৰ তলে তলে হাবি জংঘল হৈ আহিছে আৰু দেখা গৈছে যি নতুন চাইকেলে ইতিমধ্যে সকলো সামগ্ৰী পাৰ্টছ সংলগ্ন কৰাৰ পিছত এনেদৰে এয়া মামৰ লাগিছে কিন্তু তাৰ পিছতো কোনো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কাণসাৰ নাই যে এই চাইকেলসমূহ এনেদৰে মুকলিত ৰাখিলে বৰষুণত যিহেতু 2-3 দিন তিতিছে আৰু বিগত 20 দিন ধৰি এনেদৰে এই ভৱনটোৰ ভিতৰতো চাইকেল মেৰামতি কাম চলি আছে আৰু ভৱনৰ বাহিৰত এনেদৰে মুকলি আকাশৰ তলত চাইকেল দমাই থোৱা হৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এয়া চাইকেল বিতৰণ কৰা হ'ব কিন্তু কেতিয়া বিতৰণ কৰা হ'ব সেয়া এতিয়ালৈকে থিৰাং কৰা হোৱা নাই যাৰ বাবে ইয়াত যিসকল কৰ্মচাৰী চাইকেল মেৰামতি কৰিব বা চাইকেলসমূহৰ এই পাৰ্টছ ভাগে ভাগে অনা হৈছে ইয়াত সংলগ্ন কৰা হৈছে और मेरामती कर कर्मचारी আছে जिसको साइकिल मेरामत मतामत लम ये जो साइकिल है यहाँ पर कितने दिनों से इस तरह पड़ रहे हैं? 10-12 दिन से है इधर बाहर में, बाकी हम लोग 20 दिन से बाकी अंदर में रखा हुआ है साइकिल। कितनी साइकिल है यहाँ पर? यहाँ टोटल तो 2600 साइकिल है। वो फिटिंग अभी 1200 के आसपास में फिटिंग हुआ है, तो और अंदर आधा रखा हुआ है आधा बाहर है। तो बाहर क्यों पड़ा हुआ है साइकिल? तो अंदर में जगह नहीं है ना, इसी की वजह से। ना अभी तो 2 दिन से बारिश हुआ इसलिए साइकिल देखने के लिए। अभी तो पहले आया था, अंदर था तभी आया था, बाहर में है कुछ भी कोई भी तो नहीं बोला। बारिश नहीं हो रहा था इसलिए कोई कुछ नहीं बोला, बारिश होने लगा तब साइकिल इंस्टॉल कर रहे हैं। लेकिन तो सरकारी लोग आए हैं देखने के लिए कैसा काम हो रहा है, साइकिल किस तरह से रखा हुआ है, कोई सरकारी लोग आया है? हाँ आया है। तो उन लोगों ने नहीं देखा ये साइकिल बाहर उन लोग देखा है, उधर अंदर भी रखा हुआ था, बाहर भी रखा हुआ है, यहाँ पे आया देखने के लिए। आपको कुछ पता है कब ये नहीं हमको दिया जाएगा? हमको नहीं पता है। आप लोग कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। साइकिल कहाँ से आया है कुछ पता है? हाँ लुधियाना पंजाब से। आप लोग कहाँ से? हम लोग झारखंड से है। निश्चयকৈ ইয়াত ঝাৰখণ্ডৰ একাংশ কৰ্মচাৰী 8জনকৈ কৰ্মচাৰী আছে, তেওঁলোকে এইসমূহ চাইকেল লুধিয়ানা পৰা অনা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰিব। তাৰপিছত তেওঁলোকে এই কলিয়াবৰৰ যিটো মুক্তি যুঁজাৰু ভৱন, এটা ৰাজহুৱা ভৱন, এই ভৱনটোত চাইকেলসমূহ তেওঁলোকে যিসমূহ পাৰ্টছ ভাগে ভাগে অনা হৈছে আৰু সেইবোৰ সংলগ্ন কৰিছে এই ভৱনটোতে। আৰু তাৰপিছত এনেদৰে সংলগ্ন হোৱাৰ পিছত মুকলি আকাশৰ তলত বহুকেইখন চাইকেল ৰাখিছে, প্ৰায় 2 শতাধিক চাইকেল এনেদৰে মুকলি আকাশৰ তলত আছে আৰু কিছু চাইকেল ভৱনৰ ভিতৰত আছে। কিন্তু এনেদৰে চাইকেলসমূহ মুকলিত ৰখাৰ বাবে কিছু অংশত মামৰ ধৰিছে। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে, ধমকৈ হৈছিল নিশা। চন্দ্ৰত এটা নিশা মানে পৃথিৱীত 14টা দিন। গতিকে এই 14টা দিনৰ পিছত এতিয়া আকৌ চন্দ্ৰযান 3ৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান পুনৰ সাৰ পাবনে তাকে লৈ জল্পনা কল্পনা চলিছে ইছৰোত। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পুনৰ হৈছে সূৰ্যোদয়। এই সূৰ্যোদয় হোৱাৰ লগে লগেই আশাৰ বতৰা দেখিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে। সূৰ্যোদয় হোৱাৰ লগে লগেই ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান পুনৰ সাৰ পাই উঠাৰ সপোন দেখিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে। ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান যদি সাৰ পাই উঠে তেতিয়াহ'লে প্ৰজ্ঞানে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পুনৰ আৰম্ভ কৰিব নিজৰ অভিযান। এয়া হ'ব ভাৰতৰ মহাকাশ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত এক যুগান্তকাৰী অধ্যায়। কিন্তু সঁচাকৈ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান সাৰ পাই উঠিবনে? সঁচাকৈ লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে পুনৰ নিজৰ কাম কৰিবনে?
এয়া হৈছে 1 লাখ টকীয়া প্ৰশ্ন ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে আশা কৰিছে ये दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, अन्य सभी वरिष्ठ साथी और आज मैं देश की माताओं बहनों को भी यहां दूर से प्रणाम करता हूं। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ। ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है। ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है। आज हर नारी का आत्मविश्वास, हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएं, बहनें और बेटियां आज खुशी मना रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही है। साथियों, कोटि कोटि माताओं बहनों के सपने को पूरा करने का सौभाग्य हमारी भाजपा सरकार को मिला है और इसलिए राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर चलने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है। ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृतकाल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है। महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे देश की हर माता, बहन और बेटी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, लोकतंत्र में महिलाओं के लिए इस कानून से बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। यह हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है।
महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का और सभी सांसद साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत को विकसित बनाने के लिए आज भारत की नारी शक्ति को खुला आसमान देने का ये अवसर है। सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने সাৰ পাই উঠিব সেই অনুযায়ী इसलिए हमने उसे 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी। बेटी की या घर की संपत्ति पर भी अधिकार हो, इसके लिए पीएम आवास के घरों में उसे संयुक्त भागीदारी दी। गृहिणी को अपनी बचत अनाज के डिब्बे में ना रखनी पड़े, इसके लिए जनधन योजना के तहत करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खोले। मेरे परिवारजनों, बेटी रोजगार कर सके, स्वरोजगार कर सके, इसके लिए हमने बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू की। वो मां बनने के बाद भी अपनी नौकरी जारी रख सके, इसके लिए हमने मातृत्व अवकाश में वृद्धि की। बेटी अगर सैनिक स्कूल जाना चाहती है तो उसके लिए हमने सैनिक स्कूल के द्वार खोल दिए। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहती है तो हमने तीनों सेनाओं में बेटियों के लिए नए रास्ते बना दिए। गांव की बहनों को कमाई के अवसर मिले, इसके लिए हमने 9 करोड़ से ज्यादा बहनों तक सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार किया और उन्हें मिलने वाली सहायता को भी बढ़ाया। इस साल लाल किले से मैंने देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ड्रोन देने की योजना का भी ऐलान किया है। साथियों, सामाजिक स्तर पर भी 3 तलाक जैसी जिन कुरीतियों के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते थे, हमने कानून बनाकर उन्हें रोका है। हमारी करोड़ों मुस्लिम बहनों को आज 3 तलाक की अमानवीय प्रथा से सुरक्षा मिली है। वो महिलाएं भी अब अपने अधिकारों के लिए आगे आ रही है। मेरे प्यारे परिवारजन, महिला आरक्षण के लिए इतने दशकों से कोशिश तो हो रही थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3 दशक से बात हो रही थी, नहीं हो पा रहा था। आज ये संभव हुआ है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये संभव कैसे हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? कैसे संभव हो पाया?
अब मैं आपके जवाब को जरा ठीक करता हूं। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। और ये कैसे किया है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है देश की जनता ने